নমস্কার বন্ধুরা, 2025-এর শেষ দিন অর্থাৎ 31শে ডিসেম্বর টেট সংক্রান্ত যে ভিডিও, সেখানে অবশ্যই পজিটিভ আপডেট দিয়েই শেষ করব এবছরের টেট সংক্রান্ত ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন রাজ্যসভা অর্থাৎ দেশের আইন যেখানে প্রণয়ন হয়, সেই রাজ্যসভার বিরোধী দলের উপনেতা প্রমোদ তিওয়ারি টেট ম্যাটার নিয়ে একেবারে টিচারদের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন, কি বক্তব্য রেখেছেন, সেই ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার পাশাপাশি তার যে বক্তব্য কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, কতগুলো নিউজ পেপারে সেটি পাবলিশড হয়েছে, সেটিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো দেখতেই পাচ্ছেন, টেট ম্যান্ডেট ভায়োলেটস প্রিন্সিপালস অফ ন্যাচারাল জাস্টিস, রাজ্যসভা এমপি প্রমোদ তিওয়ারি। এখানে ন্যাচারাল জাস্টিসকে ভায়োলেট করছে এই টেট ম্যান্ডেট, সরাসরি স্পষ্টভাবে এই কথা কিন্তু তিনি বলেছেন, যেটি টিচারদের পক্ষে ভীষণই স্বস্তির। এবং তিনি কি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন সেটিও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। In connection with the Supreme Court's order dated September 1, a delegation of teachers led by Amit Singh, Provincial Joint General Secretary of the Uttar Pradesh Primary Teachers Associations, met Rajya Sabha Deputy Leader of Opposition's Pramod Tiwari at his Prayagraj residence. The delegations expressed gratitude on behalf of lakhs of teachers across the country and the state for strongly raising their issue during the recent winter sessions of Parliament. Teachers sought guidance from the senior parliamentarian considering his experience, political and legal experience, and requested his support in the upcoming budget sessions for legislative measures to amend the RT Act in favor of teachers. A memorandum was also submitted in this regard. Speaking on the matter, Rajya Sabha MP Pramod stated that making TET mandatory is against the principles of natural justice. He said any law becomes applicable from the day it is enacted. দেখুন, ইনি কিন্তু রাজ্যসভার মতো জায়গায়, অর্থাৎ সিনিয়র যে আমাদের যে সংসদের কক্ষ, তার কিন্তু মেম্বার এবং বিরোধী দলের উপনেতা, এবং তিনি কিন্তু বলছেন এনি ল বিকামস অ্যাপ্লিকেবল ফ্রম দ্য ডে ইট ইজ এনাক্টেড, অর্থাৎ যেদিন থেকে লাগু হলো সেই দিন থেকেই সেই আইনটি লাগু হবে। অর্থাৎ রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়াটা কিন্তু ন্যাচারাল জাস্টিসের বিরুদ্ধে। মূল বক্তব্য কিন্তু ঠিক তার এটাই, যেটি দেশের লাখ লাখ টিচারের মনের কথা। নট রেট্রোস্পেকটিভলি imposing today's eligibility norms on teachers who were recruited under the qualifications and service conditions valid at that time and who have been serving for 20 to 25 years is unjust and impractical. এবং পরিষ্কারভাবে কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি একটি অব্যবহারিক সিদ্ধান্ত। He added that such teachers were duly selected based on the recruitment advertisement and eligibility criteria that existed then, and forcing new norms upon them now is completely unreasonable. Those present during the meeting included district vice president, দেখুন এবার তাদের নামগুলো রয়েছে যারা কিন্তু এই যে ডেলিগেশন টিম সেখানে কিন্তু প্রেজেন্ট ছিলেন। এবার যে সরাসরি তার কি বক্তব্য, সেই বক্তব্যের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং তার মাধ্যমে কিন্তু আজকের ভিডিও শেষ করব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তার কি বক্তব্য। ये जो जजमेंट है ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। एक बार जब उनकी नियुक्ति हुई शिक्षकों की, तो उनकी पात्रता उसी समय टेस्ट हो गई। अब आप उनको काफी दिनों बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जो सेवा में, अब उनसे कह रहे हैं आप फिर पात्रता का टेस्ट दीजिए, तो ये अव्यवहारिक है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, अनुचित। क्या सरकार सारे आईएएस, सारे आईपीएस या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आते हैं उनसे कहेगी कि आप एक दोबारा पात्रता परीक्षा दीजिए? मैं उसका भी विरोध करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये इसके पीछे मनसा बड़ी काली है, बड़ी गलत है। वो व्यवसायीकरण चाहती है शिक्षा का। शिक्षा और स्वास्थ्य एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका व्यवसायीकरण नहीं किया जाना चाहिए। देश में कितनी शिक्षा थी 1947 में? बढ़ते 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 अगर यहाँ पहुंचा है तो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों का योगदान है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहुत कम न्यूनतम वेतनमान पर शिक्षा का दान दिया, जिससे आज भारत एक शिक्षित राष्ट्र बना। और आज जब
एक स्थिति ऐसी आ गई है कि जहां देश को और कंपटीशन में, अब तो जी दुनिया नहीं रही, एक ग्लोबल विलेज हो गया, पूरा एक गांव हो गया है पूरी दुनिया। जी तो वहां जब भारत को मजबूत बनाना है, जी। और मजबूत अब हथियार से नहीं बनेंगे, अब बनेंगे शिक्षा से, टेक्निकल एजुकेशन से, शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस समय ये सरकार का कदम आत्मघाती कदम है। ये सरकार का कदम देश के हित के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने देखा है, जी वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। उनके सामने सही तथ्य नहीं रखे गए, और जो काम सरकार को था या जो काम जो लोग पैरवी कर रहे थे उनका था, उन्होंने ईमानदारी से, कभी सोचा नहीं था शायद कि ये जजमेंट आएगा, इसलिए उतना ध्यान लगा के नहीं पैरवी की। सारे तथ्य सरकार के सामने आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमेशा नेचुरल जस्टिस को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। उनके सामने ये तथ्य आएगा तो ये जरूर होगा। इस संदर्भ में मैं इतना स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि इसमें आप श्री दिग्विजय सिंह जी, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, व्यवहारिक आदमी हैं, वही शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष, जी सभापति। जी तो मैं उनसे आप सबकी भेंट करा दूंगा, जी उनसे आप अपनी बात रखें। मेरी उनसे बात हो गई, जी प्रतापगढ़ के नेतृत्व से बात करा दी थी मैंने, जी उन लोगों ने दिग्विजय सिंह जी से बात कर ली थी। जी। तो जब आप लोग एक प्रदेश स्तर पे चले, मैं तैयार हूँ। अब 25 लाख शिक्षक प्रभावित होगा पूरे देश में, 2 लाख तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जी जी इतनी बड़ी लड़ाई को, वो हमारी शुरुआत थी। जी हम इसमें आपके साथ अंतिम क्षण तक रहेंगे, और जब तक इसको परिवर्तित नहीं करा लेंगे, पहले कोर्ट से जी रिव्यू होना जी चाहिए, जी प्रोसीजरल है जो जी कर लें, जी फिर पार्लियामेंट में, जी और फिर उसके बाद हमारा वादा है जी कि हम सत्ता में जब आएंगे तो इसको, आपकी जो मांग है, इसको हम 100% लागू करेंगे। इसलिए नहीं कि वो आपके हित में, जी इसलिए कि वो देश के हित में। जी जी अगर शिक्षा नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जी और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआती दौर में जी शिक्षा को दोनों जगह रखा था समवर्ती सूची में, जी, संविधान में, जी, अम्बेडकर जी ने, जी, जिससे कि दुगना विकास हुआ, उल्टा हो गया। जी हम सब, उस समय एक मांग होती थी जिस गांव में जाओ कि साहब स्कूल खुलवा दीजिए, प्राइमरी हमारे यहाँ, जी जी माध्यमिक खुलवा दीजिए हमारे, जी। हाई स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड साक्षी है, अपनी विधायक निधि का 90% पैसा, जी 90% कोई उत्तर प्रदेश में नहीं करता। जितने दिन मैं विधायक रहा या मोना जी अब विधायक बनी है, हम स्कूलों में कमरा बनाने के लिए देते थे, एक कमरा बनाओ। जी जी और इसी वजह से आज हमारे यहाँ शिक्षा का प्रतिशत रामपुर खास क्षेत्र में औरों के मुकाबले कई 100% ज्यादा जी है। जी और उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिला। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पे शिक्षक शामिल हो गए, उन्होंने एक स्कूल खोल लिया, मान्यता प्राप्त करा दी उनको। जब से मान्यता बंद हुई, उनको इतना मजबूत कर दिया कि वो चलाने लगे। तो कुल मिला के ये आदेश पूरी तरह त्रुटिपूर्ण, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ, देश के हित के खिलाफ है। इसमें मैं पूरी तरह आप सबके साथ हूं। जी एक